চন্দ্ৰমাত বিক্ৰম ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া গুড মৰ্নিং 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। হয়, চন্দ্ৰমাত ভাৰতৰ বিক্ৰম সাজু হৈছে প্ৰজ্ঞান। আজি ভাৰতবাসীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। ইছৰোৰ নিৰ্ধাৰিত সময়মতে চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3। আৰু এই মহেন্দ্ৰক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। ইতিমধ্যে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই ইতিহাস গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান 3। সকলো ঠিকে থাকিলে আজি সন্ধিয়া 6:04 চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3। নিৰ্দিষ্ট সময়মতে চন্দ্ৰযানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ইছৰোৱে। আজি দিনটোৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে ভাৰতবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বই। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে সকলো কাৰিকৰী কৌশল অটুট আছে বুলি উল্লেখ কৰি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে যে আজি সন্ধিয়া সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3। ইতিহাস গঢ়িব ভাৰতে। এটা নহয় দুটাকৈ ইতিহাস গঢ়িব ভাৰতে। ভাৰত হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যদি সফল অৱতৰণ কৰিব পাৰে তেতিয়া চতুৰ্থখন দেশ। আমেৰিকা, চীন, ৰাছিয়াৰ পিছত ভাৰত হ'ব চতুৰ্থখন দেশ। আৰু আনহাতে দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান অৱতৰণ কৰা কৃতিত্ব অৰ্জনকাৰী প্ৰথমখন দেশৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব ভাৰতে। আৰু সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে ফিংগাৰ ক্ৰছ কৰি বহি আছে, সকলোৱে অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক জনপ্ৰিয় দৰ্শক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি আয়োজন কৰিছোঁ এক অভিলাষী আয়োজন, এক চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান অৱতৰণৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ। কেৱল মাত্ৰ নিউজ 18ত আপুনি A to Z প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই বিশেষ মুহূৰ্ত, সেই বিৰল মুহূৰ্ত। আমি জনাইছোঁ আপোনাক 14 জুলাইৰ পৰা যি অভিলাষী মিছন চন্দ্ৰযান 3 আৰম্ভ কৰিছে, ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰিছে এটা খোজ, অত্যন্ত জটিল খোজ, অত্যন্ত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান ভৰা সেই খোজ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দ্ৰযান 3। সফলতাৰে আগুৱাই লৈ গৈছে ইছৰোৱে। আৰু যাৰ বাবে অন্তিম 15 মিনিটৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। অন্তিম 15 মিনিট হ'ব সবাতোকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক এটা পদক্ষেপ, যি পদক্ষেপৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত। ডাৰ্ক ছাইড বুলি যাক কোৱা হয়, অনাবিষ্কৃত সেই স্থানত চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণ কৰিব, লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে অৱতৰণ কৰিব। আৰু যাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত সম্পন্ন কৰি তুলিছে। আৰু নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়ে, নিৰ্ধাৰিত প্ৰগ্ৰেমিং অনুসৰিয়ে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে অৱতৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। যোৱা 14 জুলাইত শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল জুনবাই দেশলৈ। প্ৰতিটো মুহূৰ্ত, প্ৰতিটো দিনে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ইছৰোৰ বাবে, ভাৰতৰ বাবে। কাৰণ প্ৰতিটো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান এধাপকৈ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰোৱে। আৰু এতিয়া অন্তিমটো ধাপ বাকী ৰৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবৰ বাবে, ছেফ লেণ্ডিং কৰিবৰ বাবে। চন্দ্ৰযান 2 যিসমূহ ত্ৰুটি ৰৈ গৈছিল, সেই ত্ৰুটি ভুলতো যাতে ভুল নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰযুক্তিয়ে সলনি কৰি পেলাইছে। সম্পূৰ্ণ দেশীয় প্ৰযুক্তিৰ আধাৰত এইবাৰ চন্দ্ৰযান 3ৰে জুনবাই দেশত ইতিহাস ৰচিবলৈ ভাৰতে প্ৰস্তুতি চলাইছে, ইছৰোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু এই প্ৰস্তুতি সফল হ'ব বুলি যথেষ্ট আশাবাদী এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে, লগতে বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টিও এতিয়া থৰ হৈ আছে ভাৰতৰ ওপৰত, চন্দ্ৰযান 3ৰ ওপৰত, ইছৰোৰ ওপৰত। অন্তিম 15 মিনিট হ'ব সবাতোকৈ প্ৰত্যাহ্বান, সবাতোকৈ কঠিন সময়। এই 15 মিনিটত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি চন্দ্ৰযান 3ক নমাই অনা হ'ব। 25 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা নমাই অনা হ'ব, গতিবেগ হ্ৰাস কৰা হ'ব। আৰু জটিল ব্ৰেকিং প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডিং কৰিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে সফলভাৱে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব পাৰিলেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে নিজৰ কাম 14 দিন ধৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম আপোনালোকক, লগতে মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্যসমূহ আগবঢ়াই ল'ম। ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। सर, लैंडिंग में कितनी मुश्किल हो सकती है, और यदि 23 तारीख को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा सर? तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को। और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए
लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतः 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है, वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उत्तरायण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो, इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए, और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे, और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसा कि मैंने बताया, जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा, और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा, जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके, और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहाँ पे घूम रहा है, वह उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा, और लगभग 60 मीटर तक जाएगा, और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। तो ये दोनों सिनेरियो हमने प्रोग्राम किए हुए हैं। और अगर उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग जगह पे पहुंच गया है, जिसकी संभावना काफी कम है, बट तो भी हमने उसके लिए जो बोलते हैं कि साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है, जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल, यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, कि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है। तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के, जहाँ की जमीन काफी सीधी और सपाट जमीन है। तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही इजी रहता है। बट उसको छोड़ के हमने साउथ पोल की ओर प्रयाण किया है 70 डिग्री लैटिट्यूड पे, और जहाँ की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है, हेजार्डस है जिसको कहा जाए। तो उस जमीन में से हमको एक सपाट एरिया फाइंड आउट करना है, जो एरिया जिसमें उतनी उबड़ खाबड़ जमीन ना हो। तो वो फाइंड करने के लिए हमने 4 बाई 2.4 किलोमीटर का एक एरिया आइडेंटिफाई किया है, लैंडिंग साइट जिसको बोलते हैं। और उसमें उसको अलग अलग 24 मीटर के भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो और उसमें से एक जगह पे हम उत्तरायण करेंगे, जहाँ पे नीचे प्रक्षेपण करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, वो जगह अगर ठीक नहीं है तो थोड़ी उसमें से ही लगभग 3900 ऐसी सब इमेजेस हमने स्टोर करके रखी है। उसमें से जैसा कि मैंने बताया, वो 800 मीटर से सीधा नीचे वहीं पे उतर जाएगा, और खासकर वही आइडियल साइट है हमारे लिए। बट कुछ अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो थोड़ी साइड में खिसक के दूसरी